My name is Suresh Bajpayee and this is the online classes of Supreme 60. Students, in this lecture we will see the third chapter of our unit magnetism, that is the permanent magnet and magnetic properties of materials. Clear? So this is the third chapter of our magnetism and this is the second lecture of this third chapter. Clear? So in first lecture we have discussed the what is a dipole. Clear? A magnetic dipole. It is simply a bar magnet. Clear? Or we can say a current carrying loop. Clear? So students, as we all know that a bar magnet is known as a dipole. Clear? Known as a magnetic dipole. So we have seen the similarities between a magnetic dipole and an electric dipole. Lots of formulae. Clear? And the conversion of all the electrostatic formula of dipole into the magnetic dipole. Clear? Into the formula of the magnetic dipoles. Clear? That is, for example, the equatorial magnetic field, the axial magnetic field, the torque on a dipole in an external magnetic field, the potential energy of the dipole in an external magnetic field, or we can say that the work done in moving the dipole from one angle to another angle. Clear? In an external electric field, in an external magnetic field, sorry. Clear? So these types of formulas we have studied. Clear? And after this, what we have to see a numerical based on that concept. Clear? So students, कुछ भी चीजें आपने नई नहीं देखी यहाँ पे, मैंने सिंपली आपको जो आप पीछे पढ़ के आए हो उसी से सारी चीजें रिलेट कर दी. ठीक है? और जब पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात करी तो आप समझ गए होंगे कि इक्विलिब्रियम में भी वहां पे जो केसेस बनते थे, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में वैसे ही केसेस बनेंगे. मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ओके? सो स्टूडेंट्स, आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. आप क्वेश्चंस लगा पा रहे होगे. ठीक है? और अगर क्वेश्चंस आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन यू विल टेक्स्ट ऑन द अवर सुप्रीम 60 ऐप, देन द प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड. ओके? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेक्शन, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हमने न्यूमेरिकल्स की काफी बात कर रखी है, लेकिन ये चैप्टर जो है थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन फिर भी इसमें हम जो मेन न्यूमेरिकल्स होंगे उन पे फोकस करते हुए चलेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ अवर थर्ड चैप्टर, दैट इज a magnetic dipole is free to rotate. A magnetic dipole is free to rotate in a uniform magnetic field. Clear? For what orientation of the magnet? For what orientation of the magnet with respect to magnetic field? A part है, torque is maximum. B part, potential energy is maximum. C part, rate of change of torque with angle of orientation is maximum. So students, you should first pause the video and try it by yourself, then you have to see the solution. So just pause it. Okay student, now I hope you have tried the numerical by yourself and I hope कि आपको आंसर मिल भी गया होगा. ठीक है? काफी लोग को आंसर मिल गया होगा. Actually this is a very simple numerical. Okay? Now we are going to solve it. तो पहली चीज है कि भाई जब आपका ये एक बार मैग्नेट है, इस तरह से एक डायपोल है, या फिर आप कहते हो एक बार मैग्नेट है, बात एक ही है. क्लियर? सो दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल. क्लियर? सो इस तरह से ये आपका एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा हुआ है. एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे. ठीक? जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रही है. देयर इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डायरेक्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस. क्लियर? सो दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड here. Okay? Now for what orientation of magnetic field with respect to magnet with respect to magnetic field, टॉर्क इज मैक्सिमम. टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? तो आपको ये चीज समझनी होगी. पहले हमें इसका टॉर्क देखना पड़ेगा. व्हाट इज द टॉर्क हियर? ओके? तो टॉर्क, जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कांसेप्ट से आपको मैंने डायरेक्ट रिलेट करने को कहा था कि टॉर्क ऑन अ डायपोल विल बी इक्वल्स टू E क्रॉस P क्रॉस E इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो M क्रॉस B in magnetism. Clear? Where this M is the magnetic dipole moment and this B is the external magnetic field. Clear? And the direction of magnetic dipole moment is from south to north. So this is the direction of magnetic dipole moment in this case. But we have to talk about the general case. Clear? So this is simply mod M mod B sin theta. The definition of the cross product. Clear? So students, आप समझ रहे हो अच्छे से कि भाई ये आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. ओके? इसकी डायरेक्शन तो हम समझ ही सकते हैं. डायरेक्शन तो m क्रॉस b की डायरेक्शन में ही होगी. क्लियर? सेंस ऑफ रोटेशन भी m से b की तरफ हो जाएगा. ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी नोन. क्लियर? सो नाउ mb sin theta is the magnitude of torque and this will be maximum when this sin theta is maximum and the maximum value of sin theta is
as we all know, is equals to 1, and this will be at an angle of theta equals to pi by 2. Clear, students? So for theta equals to pi by 2, our torque is maximum. तो जो orientation होगा इस बार मैग्नेट का इस मैग्नेटिक फील्ड में, this will be like this. This will be just like this. Here N, here S, or like this. Here S, here N. Clear? So these two are the arrangement of, or we can say the orientation of magnet with respect to the magnetic field. In both the cases, the angle between magnetic field and dipole moment is 90 degree. Okay? So I hope the first part is very much clear to you. Now we will talk about the potential energy. Okay, students. So our potential energy, simply potential energy will be equals to minus P dot E in case of electrostatics. So in this case, this will be minus M dot B. I hope this thing is very much clear to you. Where this M is magnetic dipole moment and again B is magnetic field, external magnetic field. Clear? So this will be minus M B cos theta. Okay, students. So we have to maximize this potential energy. Clear? And there is a negative sign. So this function will be maximum when this function is minimum. Means we have to maximize this minus cos theta. Clear? It will be maximum, its maximum value will be at theta equals to 180, as we all know. When cos theta is equals to minus 1, then this will be equals to 1. Okay? So I hope this thing is very much clear to you. So the maximum value of potential energy will be occur at when theta is equals to 180 degree, and the potential energy will become plus MB simply. Clear? So this is the maximum potential energy, and that position will be the unstable equilibrium position, because when theta equals to 0, torque will also be equals to 0. Clear? Torque will also be equals to 0. Hence when theta equals to 180, torque will also be equals to 0. Clear? So there are two positions where torque is 0. One is 0 and one is 180 degree. Clear? Theta is equals to 0 पे भी torque 0 है, theta equal to 180 पे भी torque 0 है. लेकिन theta equal to 0 पे जो potential energy आएगी, that will be minus MB, means negative होगी potential energy और minimum potential energy होगी. That equilibrium will be the stable equilibrium. So when the potential energy is maximum at theta equals to 180, equilibrium exists because torque is 0, but this type of equilibrium is the unstable equilibrium. We can also find it by displacing our dipole by an angle theta. आप dipole को, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आपको अगर फाइंड करना हो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो आपके पास एक ही फंडा है, आप जो हर समय काम करेगा, हर बार काम करेगा, ठीक है, क्या कि भाई आप जो है उस सिस्टम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो. ठीक, जैसे कि अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें, मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें, तो हम डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे. क्लियर? और अगर डाइपोल अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, देन दिस विल बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर नहीं आता है तो दिस विल बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. क्लियर? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, as you all know by definition. Clear? Now, so here the potential energy will be maximum at theta equals to 180, hence here theta will be equals to 180. This will be the answer. And what will be the orientations? Orientation will be like this. Theta equals to 180. Okay, students, so this will be the orientation, because this M will be in this direction, magnetic field will be in this direction. The angle between the M and B is simply 180 in this case. So this will be the example of second case. This will be the example of second case. Okay, now we are going to see our third case, that is the rate of change of torque with angle of orientation is maximum. So what do you mean by rate of change of torque? So simply, let us try the third case. So torque is MB sine theta. So I hope this thing is very much clear to you. Now, rate of change of torque with angle. Rate of change of torque with angle d tau by d theta. D tau by d theta will be equals to what? MB, as it is, because this is constant. The differentiation of sine theta, as you all know, becomes cos theta. Clear? So this is cos theta. This is the differentiation of, or we can say the rate of change of torque with angle of orientation. Clear? Is maximum. So we have to maximize this rate of change of torque. This is our rate of change of torque, and we have to maximize this
rate of change of torque means we have to maximize this mb cos theta. तो cos theta की maximum value होती है theta equals to 0 पे, that is 1. Clear? So in this case theta will be equals to 0. Clear? Then cos theta will be equals to 1. So this is the maximum value of cos theta. Clear? So इसका आंसर हो जाएगा theta equals to, the answer will be theta is equals to 0 degree. Clear? Theta will be equals to 0 degree, and the orientation in this magnetic field will be look like as this type. So here it will be S, here it will be N. The magnetic dipole moment will be in the direction of magnetic field. Clear? Hence the angle between the magnetic field and magnetic dipole moment will be 0 in this case. I hope this thing is very much clear. So this is the answer of A part, these two. This is the answer of B part, and this is the answer of C part. Clear? So I hope the thing is very much clear to you. The question is very simple and very experienced by you. Clear? आप इस तरह क्वेश्चन काफी बार कर भी चुके हो, तो I hope कि काफी लोगों ने ये क्वेश्चन जो है अपने आप सॉल्व कर रखा होगा. ठीक है? So चलिए अब हम मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट in which we will see about the current carrying loop as a magnetic dipole, जो हम बात पहले ही कर चुके हैं. उसके बाद हम एक एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे. ठीक है? चलिए स्टूडेंट बात करते हैं करंट कैरिंग कॉइल एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. क्लियर? सो दिस इज योर करंट कैरिंग कॉइल. This is your current carrying coil. Clear? In which the current is anti-clockwise direction from the front side. Okay? So as you all know that when the current is anti-clockwise direction, clear? And we will select a current element. If we will select a current element and find out the magnetic field at the center because of this current element, then this will be can be found by right hand palm rule. So thumb in the direction of current, fingers indicating the point where we have to find the magnetic field means center, and palm will give us the direction of magnetic field here. If we will do this for each length element, clear? If we will do this for each length element, then the result will be same. Okay? The magnetic field because of each element will be dot. Clear? So this will be dot, or we can find the magnetic field at the center by this method, or we can find this magnetic field by the law of north pole and south pole. Clear? As you all know, here is it. The current is anti-clockwise, and when the current is anti-clockwise, then we will see a north pole here. Okay? Then we will see what? A north pole here at this cross section of the loop. Okay? So this will be north pole. So north pole means magnetic field will be dot. Clear? And when the current is clockwise, then we will see the south pole, and the magnetic field will be into the plane of the loop. Clear? Now we also have some more methods, that is right hand thumb rule 1, because of which we will find the direction of magnetic dipole moment. The direction of magnetic dipole moment, as we all know that the direction of magnetic dipole moment will be curling the fingers in the direction of current. Thumb will give us the direction of magnetic field, or we can say thumb will give us the direction of magnetic dipole moment because of the loop. As we all know, magnetic dipole moment is equals to magnetic dipole moment, that is M will be equals to IA. Clear? So this is in the direction of area vector, find by the right hand thumb rule. Okay? So thumb in the fingers, curling the fingers in the direction of current. Thumb will give us the direction of magnetic field, or we can say the dipole moment of the loop, because the magnetic field of the loop and the dipole moment of the loop will be in the same direction. Clear? So here it is seen as the north pole. Clear? If we will see this from the back side of this loop, then as we all know that the current will be clockwise and the north pole will be there. Okay? So अगर इसी फिगर को अगर हम बैक साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस तरह से बैक साइड, इसका बैक व्यू देख रहे हैं, तभी ये चीज हमें करंट यहाँ पे जब हम बैक व्यू देखेंगे, देखिए करंट यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, लेकिन अगर हम ये चीज के पीछे से देखेंगे तो करंट हमें क्लॉकवाइज दिखेगी. I hope this thing is very clear to you. Suppose the current is anti-clockwise in this direction when we are seeing from the front view. Clear? If we will see the same figure from the back view, then it will be clockwise. और साउथ पोल हमें दिखेगा. क्या दिखेगा? साउथ पोल. तो करंट यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज दिखेगी, इसका बैक व्यू है, कंफ्यूज मत होइएगा. So this will be the back view, and the current will be clockwise. When the current is clockwise, then here it will be
साउथ पोल, सो द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी क्रॉस। एक ये मेथड है, दूसरा राइट हैंड पाम रूल मेथड है, और तीसरा आपके पास राइट हैंड थंब रूल मेथड भी है। क्लियर? सो आप समझ पा रहे हो कि भाई एक तरफ से अगर नॉर्थ पोल दिख रहा है तो दूसरी तरफ से साउथ पोल दिखना मस्ट है, या फिर एक तरफ से अगर साउथ पोल दिख रहा है तो दूसरी तरफ से नॉर्थ पोल दिखना मस्ट है। क्लियर? जरूर दिखेगा। तो इसी तरह से अगर हम बार मैग्नेट की बात करें, क्लियर, अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो भाई बार मैग्नेट में भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है इस तरह से बाहर और इस तरह से अंदर, और जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है वहीं पे ही ये फिनिश्ड भी होती है। बिकॉज एज यू ऑल नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स अ closed loop. We have seen this in our last lecture. Clear? In our last lecture, in the previous lecture, we have seen the properties of magnetic field lines. Clear? उसमें हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा क्लोज लूप ही बनाती हैं, ठीक है। सो क्लोज लूप ही बनाती हैं, और ये एक डायपोल है सिंपल सा, ठीक है। ये बार मैग्नेट इज अ डायपोल। और सिमिलरली इस केस में भी क्या होगा कि भाई अगर हम इस लूप का इस तरह से लूप को रखते हैं, ठीक, यहां से नॉर्थ पोल दिख रहा है साइड और पीछे से साउथ पोल दिख रहा है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी और यहां से अंदर जाएंगी, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही है वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिनिश भी हो जाएंगी। क्लियर? सो दिस शोज दैट दिस magnetic field lines is very much similar to that of a bar magnet. Hence, this loop, this current carrying loop will be look like as a bar magnet. This is also an example of magnetic dipole. This is also an example of magnetic dipole. Clear? जिसका मैग्नेटिक डायपोल का एक ये भी एग्जांपल जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। सो इसका डायपोल मोमेंट जो है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, और कहां से आएगा ये डायपोल मोमेंट? फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल, curling the finger in the direction of current, thumb will give us the direction of magnetic field or magnetic dipole moment. Clear? So this is the concept of magnetic, this is the concept of current carrying loop as a magnetic dipole. देखिए स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करी तो चीजें बहुत ही फैमिलियर हो चुकी थी आपकी, धीरे धीरे जब आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे थे तो चीजें फैमिलियर होती चली जा रही, ठीक है। तभी आप वो न्यूमेरिकल्स जो आप करना चाहते हो वो कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी में आए, जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे चीजें फैमिलियर फिर से होती चली गई, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो जो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, ठीक, वो कंसेप्ट आपके लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा आप अगर कुछ नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्री रीडिंग्स करके आ रहे हो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। क्लियर? और अगर आप उसके बाद और प्रैक्टिस करते हो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस के बाद भी करनी है। सो क्वेश्चंस अगर आपसे कहीं और से आप क्वेश्चंस के अलावा अगर लगाते हो और नहीं लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने लेक्चर्स में थोड़ा ध्यान कम दिया है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर, और पूछिए क्वेश्चंस। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे चीजें क्लियर होंगी। देखिए हो सकता है पहली बार में तुरंत सॉल्यूशन आपको ना मिले, लेकिन सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा और वो चीज क्लियर हो जाएगी। अगर पहली बार में सॉल्यूशन दे दिया जाए तो आप भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। और फर्क इससे पड़ेगा कि आप उसे कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो। क्लियर? फर्क इससे नहीं पड़ेगा कि आपको कितनी जल्दी सॉल्यूशन मिलता है। समझ पा रहे हो? सो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, और धीरे धीरे चीजों को करते हुए चले जाना है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं, देख रहे हैं आपकी 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और आई होप मैग्नेटिज्म भी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, विद इन 2 मंथ्स। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज चैप्टर, दिस इज वेरी ह्यूज चैप्टर्स ऑफ 12th क्लास फिजिक्स। इसके बाद 12th क्लास में सिर्फ आपका न्यूक्लियर बचा रहता है, ठीक है। सो एक बहुत अच्छा सिलेबस कवर हो रहा है और आप ऐसे ही यहाँ पे बने रहें, जिस तरीके से आप, जिस एंथुसियाज्म से आप स्टार्टिंग से देख रहे थे ये वीडियो लेक्चर्स, उसी तरह से देखते रहें, द नोट्स बनाते रहें, ठीक है, और रिवीजन रखें कंटिन्यू। द थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। भाई ये आपका जो मैग्नेटिक, जो एक करंट कैरिंग लूप है, ये एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये हमने पहले ही बात करी थी और एक बार फिर से हमने बात करी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एटम, द एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर? अब आप खुद समझो कि भाई करंट कैरिंग लूप है, इसका मतलब चार्ज जो है वो लूप में है, ठीक है, चार्ज आपके लूप्स में है, तब हम बोल रहे हैं कि ये जो लूप, ये जो करंट कैरिंग लूप है, इसमें मतलब चार्ज एक लूप में मूव कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ डायपोल मोमेंट। तो आप खुद समझ जाओ कि भाई जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, इस चार्ज विल मूव अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ चार्ज इन अ लूप। सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल विल बी नोन एज अ करंट कैरिंग लूप और मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर? सो ये भी एक मैग्नेटिक डायपोल का एग्जांपल होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल आपका एक लूप में मूव कर रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी हम इसी तरह से निकालेंगे IA वाले फॉर्मूले से।
क्लियर? उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, वो भी हमें याद होना चाहिए। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू सी an atom as a magnetic dipole, clear, and the dipole moment of that atom also. चलिए, okay, so now let us talk about the atom as a magnetic dipole. Clear? So here is your numerical, here is your nucleus, sorry, okay, and this is a electron, this is the orbit of an electron. Clear? An electron is revolving about the nucleus in this orbit. Clear? So students, we have already discussed the case where we have charged a ring, we have charged a ring by a charge q, clear, and after charging we have rotated this ring about this axis, clear, about its axis, about the axis passing through its center by a angular velocity omega. In this case we also find that this is the example of a magnetic dipole. Clear? This is also example of a magnetic dipole, and the ratio of magnetic dipole moment to the angular momentum in this case will be equals to q by 2m, where this q is the charge on the ring and small m is the radius of the ring. Clear? So this is also example of a magnetic dipole, and the magnetic dipole moment divided by the angular momentum of this type of example will be equals to q by 2m. If this ring is charged by one particle, or we can say by one electron, then also the case will be same. In this situation, the charge will be E and mass will be the mass of the electron. Clear? So I hope this example is very much clear to you. Okay. Now let us talk about this electron. Listen, this electron is also simply an example of charge, clear, which is revolving in a circular orbit. Clear? In a orbit, clear, approximately circular orbit, as we can say by the Bohr atomic theory. Clear? This is a circular orbit in which the electron is revolving around the nucleus. Clear? So अब आप समझ रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इसकी कुछ रेडियस होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब इसकी वजह से भी यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा जिसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड होगा बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. क्लियर? अ करंट कैरिंग लूप इज हियर and because of this loop there is a magnetic dipole moment. Clear? And the direction of that magnetic dipole moment will be perpendicular to this loop and can be found by right hand thumb rule 1. Clear? Curling the finger in the direction of currents. Listen, the direction of electron is in this anti-clockwise direction, but the direction of current will be opposite to the direction of flow of electron, so the current will be in clockwise direction. Clear? So the thing that we have to keep in mind that we have to apply right hand thumb rule with currents, not with the charged particles. Okay, so curling the finger in the direction of current, thumb will give us the direction of magnetic field, so the magnetic field will be into the plane, or we can say the magnetic dipole moment will be into the plane. Clear? So हर एटम के साथ एसोसिएटेड उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है. इस पॉइंट को याद रखिएगा. क्लियर? इस पॉइंट को लिख लीजिए. एवरी एटम हैज इट्स ओन direction of magnetic dipole moment. A magnetic dipole moment is associated with an atom. Okay? A magnetic dipole, मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ. A magnetic dipole moment is associated with each, we can say every atom. So I hope this thing is very much clear. Okay? So हर एटम के साथ एक मैग्नेटिक डाइपोल एसोसिएटेड होता है. क्लियर? अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड होता है, ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी. द डायरेक्शन विल बी perpendicular to the direction of perpendicular to the plane of revolution of electron. Okay? So the direction of magnetic dipole moment will be perpendicular to the plane of revolution of electron and can be found by right hand thumb rule 1. Clear? So इस तरह से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है? So the velocity, let the velocity of electron here is v, clear, and the radius of this electron from the center is
r. The distance of this electron from the center is r. Clear? So now the magnetic dipole moment, simply the magnetic dipole moment will be equals to I into A. Clear? So you can find it by yourself. Try it by yourself, then you have to tell me the answer. Okay? And then you have to see the solution. चलिए एक बार वीडियो पॉज कीजिए और खुद से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश कीजिए. आई होप कि काफी लोग निकाल लेंगे. ठीक है, चलिए आई होप कि काफी लोग ने निकाल लिया होगा. EVR by 2R होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. चलिए देखते हैं. सो I is current because of this electron. Clear? So current is charge per unit time, और टाइम एक इलेक्ट्रॉन को यहां से पास होने में कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड. क्लियर? सो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से पास होने में एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगेगा. सो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम टेकन, चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन. तो चार्ज कितना गया? E कितने टाइम में? T टाइम में. सो द चार्ज पर यूनिट टाइम इज दिस इज अवर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर? एंड एरिया इज पाई r square, area of the loop. Clear? So now this E upon T. T is what? T is simply the time period, and time period is what? Distance upon velocity. So this will be, distance is 2 pi r. Clear? 2 pi r divided by velocity. So velocity will be on the numerator side and pi r square here. So on solving, this will give pi se pi cancel. This will equals to EV r se r cancel, divided by 2. So this will be the result. This will be the result. So this is our magnetic dipole moment associated with an electron. This is the magnetic dipole moment associated with an electron. Clear? अब आप समझ सकते हो कि ये velocity जो है ये nth orbit पे depend करेगी according to the Bohr model. ठीक है, आपने atomic structure में पढ़ा होगा कि भाई ये velocity जो है ये nth orbit पे depend करती है. Clear? It is z by n, directly proportional to z atomic number and inversely proportional to n, that is orbit number. And this r is directly proportional to n square by z. Clear? Means directly proportional to orbit number का square and inversely proportional to z atomic number. Clear? जब आप इसको simplify करेंगे, then you will find this dipole moment which is associated with an electron is directly proportional to n, which is the orbit number. Clear? So we can say this is directly proportional to n, or we can find this thing from here also. यही चीज हम यहां से फाइंड कर, भाई ये ऑर्बिट नंबर है, n is the orbit number. Clear? V जो है, this V, I hope this thing is very much clear. This V is directly proportional to z by n, and this r is directly proportional to n square by z. I hope I am very much clear. ठीक है? I hope this thing is right. So केमिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक आ गया यहाँ पे, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से. भाई V की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, R की वैल्यू पुट कर सकते हो. Here you will find that magnetic dipole moment associated with an electron of nth orbit will be directly proportional to the orbit number. Clear? So यहाँ से भी इसको यहाँ से भी देखा जा सकता है. Simply m is equals to EVR by 2. इसको रहने देते हैं जरा. ठीक है? अगर हम इस चीज को यूज करें, इस कंडीशन को यूज करें, ये फॉर्मूला तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज भी होगा. क्लियर? और ये आपको याद करके भी रखना है. ठीक है? इसे अलग से कॉपी में लिख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए. कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल एक न्यूक्लियस के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा एसोसिएटेड, दैट विल बी EVR by 2 सिंपली. क्लियर? अगर अल्फा पार्टिकल है देन हियर इट विल बी 4e. क्लियर? बिकॉज द चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल इज 2e, sorry, here it will be 2e because the charge on the alpha particle is plus 2 electronic charge, and mass is not in this formula, so it will be written as. Clear? So if we are using this formula for the alpha particle, then in case of E, here it will be 2e. अगर प्रोटॉन के लिए यही फॉर्मूला हम लगाते हैं, जब प्रोटॉन एक लूप में अगर मूव कर रहा है, then simply the formula will be just like it. Clear? Now अब हम समझ रहे हैं कि भाई m जो है ये ऑर्बिट नंबर पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ये हमें निकालना है. तो यहां से तो हमने देख लिया दैट दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज ऑर्बिट नंबर. क्लियर? अगर ये चीज हम यहां से देखना चाहें तो बहुत आसानी से देख सकते हैं. q by 2m, q is the charge on the electron. Clear? q is the charge on electron which is the revolving particle, and m is the mass of the electron. So we can write it as m by L is simply the angular momentum associated with that electron. This will be E by 2 me. Okay? And from here we can find m
m इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे देख चुके हैं, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट उठा के वहां से लिया, क्लियर, कि भाई m और l का जो रेशियो होता है दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइड बाय half of the ratio of charge and mass, clear, this is equals to half of the ratio of charge and mass. So मैंने डायरेक्ट वहां से ये फॉर्मूला उठाया है, clear. So कोई भी मिस्टेक आपको नहीं समझ में आ रही होगी, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं लग रही होगी आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा काम कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक, पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं, clear, in the first lecture of magnetic dipole moment, ठीक, in the previous chapter we have studied this formula, आप अपने नोट्स में पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है, और मैंने वहां पे एक फिगर भी बनवाया था आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आसानी से, ठीक है. सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर. नाउ m बाय l, सो m विल बी इक्वल्स टू e बाय 2 m सफिक्स में e, दिस me इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्लियर, इनटू l, और l जो है फ्रॉम द बोर मॉडल ऑफ एटम, दिस l विल बी nh अपॉन 2 pi, दिस l इज डायरेक्टली टू n, दिस इज द ऑर्बिट नंबर, hence this will be nh upon 2 pi, clear, so this will be written as n into he by 4 pi me, clear. Now so from here we can see that magnetic dipole moment is directional to orbit number, this is small n, magnetic dipole moment आपका small n के directly proportional है, ठीक है. so बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन किया हमने. अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए nth ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो उसका डाइपोल मोमेंट अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, अगर वही इलेक्ट्रॉन जो है जो nth जो पहली ऑर्बिट में था अगर उसको हमने 8th ऑर्बिट में रख दिया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली दिस डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली टू स्मॉल n व्हिच इज द ऑर्बिट नंबर, ठीक. अब एक डेफिनेशन छोटी सी आती है बोर मैग्नेटॉन की जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी. This is, it is defined as the magnetic dipole moment. It is defined as the magnetic dipole moment. What is it? It is the magnetic dipole moment associated with an electron, associated with an electron in the, wait. So again, it is defined as the magnetic dipole moment associated with an electron in the first orbit of hydrogen atom, in the first orbit of hydrogen atom. कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ n की वैल्यू अगर हम 1 करते हैं तो जो वैल्यू आएगी दिस इज आवर बोर मैग्नेटॉन, दिस इज टर्म्ड एज आवर बोर मैग्नेटॉन बिकॉज दिस इज द डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट. अगर ऑर्बिट नंबर यहाँ पे n जो है ये 1 हो जाए देन दिस क्वांटिटी इज आवर बोर मैग्नेटॉन, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि h की वैल्यू हमें पता होता है 6.6 × 10⁻34, क्लियर. E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 4 पाई की वैल्यू पता है, me इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg, क्लियर. तो सारी वैल्यूज को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो इसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी, इस बोर मैग्नेटॉन की एक फिक्स वैल्यू आएगी जिसको हम Bm बोल देते हैं, दिस इज अवर Bm, क्लियर. ये तो m था, ये तो m था. अगर हम Bm की बात कर रहे हैं तो n = 1 हो जाएगा. सो पहले तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज अवर Bm, बोर मैग्नेटॉन, क्लियर. दिस इज अवर बोर magneton, this n is equals to 1 for n is equals to 1. I hope this thing is very much clear. इस कंसेप्ट में इस एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं, ठीक है, तो उनको पॉइंट वाइज आप लिख लीजिएगा, ठीक है. एक बार फिर से देख लेते हैं. पहली चीज मैंने डिस्कस करी, अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एसोसिएटेड विद एवरी एटम. उसकी डायरेक्शन भी मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से निकलेगी, ठीक है. m बाय l से हमने ये कंसेप्ट यूज किया और हमने सीधे बताया कि m इज डायरेक्शनल टू स्मॉल n होगा, पहली चीज, ठीक है. दूसरी चीज हमने एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए हमने उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी निकाल दिया, दैट इज EVR/2, और इसकी डायरेक्शन भी हमने निकाल दी है, ठीक है. डायरेक्शन भी हमने यहां से निकाल दी है राइट हैंड थंब रूल 1 यूज करके, ठीक है. सो दीज आर ऑल द कंसेप्ट बिहाइंड द एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक. अब हम अर्थ मैग्नेटिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, जैसे कि देखिए अगर हम किसी भी मैग्नेट को एक स्ट्रिंग से सस्पेंड करके छोड़ देते हैं तो ये एटम जो ये मैग्नेट है, किसी भी मैग्नेट को अगर हम स्ट्रिंग से अटैच करके सस्पेंड करके रख देते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड पोजीशन में रख देते हैं, तो ये जो मैग्नेट है ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, सो अगेन स्टूडेंट्स देयर इज अ लाइट प्रॉब्लम. सो अगर
किसी भी मैग्नेट को हम एक स्ट्रिंग से सस्पेंड करके एक किसी भी पोजीशन पे सस्पेंड करके रख देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो मैग्नेट है ये किसी भी रैंडम डायरेक्शन में सस्पेंडेड रह जाए, ऐसा नहीं है। ये जो मैग्नेट है ये एक फिक्स डायरेक्शन में सस्पेंडेड रहेगा, और वो डायरेक्शन होगी जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर? मैग्नेटिक कंपास में भी यही होता है एक्चुअली। मैग्नेटिक कंपास भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट पे होता है, ठीक है, और वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। आप खुद सोचो कि अगर एक मैग्नेट को आपने सस्पेंड कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में साउथ पोल नॉर्थ पोल चला जाएगा, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल। क्लियर? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। क्लियर? और साउथ पोल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। सो एट लास्ट द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सो अगर आपने 2-3 मैग्नेट एक साथ रख दिए और वो 2-3 मैग्नेट जो रेस्ट पे आएंगे, अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट में आते हैं, तो तुरंत समझ जाना वहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर है, ठीक है। सो अगर हम अर्थ में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे 2-3 मैग्नेट को सस्पेंड करके रखते हैं, तो हमें पता चलता है इन मैग्नेट का डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन सेम है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर रही होगी। लेकिन अगर आसपास कोई मैग्नेट ही ना दिखे तो क्या सोचोगे? तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? फ्रॉम हियर वी विल कंक्लूड दैट देयर इज अ इनहेरेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्लियर? अर्थ की अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्लियर? और इस मैग्नेटिक फील्ड को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप द कंसेप्ट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। व्हाई वी आर गोइंग टू सी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, कहां से ये जनरेट हुआ कंसेप्ट, तो ये चीज अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कंसेप्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैंने भी बताया आपको, जैसे ही आप किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड करके रखते हो तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सस्पेंडेड होती है, ठीक है, जो डायरेक्शन नॉर्थ पोल की तरफ होती है, ठीक है। मतलब कि जो डायरेक्शन जो है इसकी, ये उस डायरेक्शन में मैग्नेट रेस्ट पे आएगा जहां पे उस तरफ ये इंडिकेट करेगा, इसका नॉर्थ पोल उस तरफ इंडिकेट करेगा जहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ एक्सेस होगी, जहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा, वी कैन से। ठीक, देखिए जो अर्थ है वो आपकी, जो अर्थ है उसकी ज्योग्राफिकल एक्सेस होती है एक, ठीक है। क्या होती है? ज्योग्राफिकल एक्सेस। इसका मतलब अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल एक्सेस। ये जो ब्लैक कलर से डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है, दिस सर्कल इज योर अर्थ, एंड जो ब्लैक कलर से डॉटेड लाइन मैंने दिखाई है, दिस इज योर ज्योग्राफिकल एक्सेस, ठीक है। सो ज्योग्राफिकल एक्सेस होती है, तो यहाँ पे ये एक नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, और एक साउथ पोल होगा अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सेस का, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, अब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरह से एंटर करे, जिस जगह पे एंटर करेगी वहां पे नॉर्थ पोल होगा, वहां पे साउथ पोल होगा, ठीक है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक बार उसको हम दिखाते हैं आपको। सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज जस्ट लाइक दिस, क्लियर, जस्ट लाइक दिस। इस तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होती है, ठीक है। यहां से बाहर निकल रही है, यहां से अंदर जा रही है, आप समझ रहे हैं। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, ठीक है। अभी हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की डेफिनेशन भी आपको देंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो सिंपली अभी इस चीज को छोड़ दीजिए, ठीक है भाई। ये जो है आपका क्या है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, क्लियर। सो दिस विल बी लाइक दिस। सो अर्थ के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी कि नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जा रही है, और अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो साउथ टू नॉर्थ हो जाएंगी। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस inside the earth, clear, and outside it will be like this, it will be just like this, clear। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पे एंटर कर रही होंगी, क्लियर। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट साउथ पोल एंड दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट नॉर्थ पोल, क्लियर। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। सो पोल्स क्या हो रहे हैं, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है दिस विल बी साउथ पोल, ठीक। अब ज्योग्राफिकल पोल्स की अगर हम बात करें, तो जैसे ही आपने मैग्नेट को सस्पेंड करके रखा तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्लाइन हो जाएगा, जिस डायरेक्शन को बोलेंगे नॉर्थ पोल, क्लियर। जिस डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ सरफेस, क्लियर। सो आई एम जस्ट रबिंग इट, क्लियर, बिकॉज दिस क्रिएट्स द मोस्ट ऑफ
कंफ्यूजन, ठीक। आप बस ये समझो, दिस इज योर ज्योग्राफिकल एक्सिस, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल, एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिज्म की हमको बात करनी, ज्योग्राफिकल की अभी हम बात नहीं कर रहे। बस एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी वो ये है कि ज्योग्राफिकल एक्सिस जो होगी वो थीटा मींस थीटा इक्वल टू 11 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक एक्सिस होगी वो थीटा इक्वल टू 11 से टिल्टेड होगी फ्रॉम द ज्योग्राफिकल एक्सिस। जो मैग्नेटिक एक्सिस होगी वो आपकी एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 11 डिग्री पे होगी फ्रॉम द ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक। बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखिए, मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस बिल्कुल भी कोलाइड नहीं कर रही, एक ही कोलिनियर नहीं, मतलब एक ही लाइन पे नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस जितना ज्योग्राफिकल एक्सिस से एंगल बना रही है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा इक्वल टू 11 डिग्री। ये एंगल आपको याद होना चाहिए, ठीक। कभी भी पूछा जा सकता है, पूछा तो नहीं किया लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय ज्योग्राफिकल एक्सिस? सो द लाइन जॉइनिंग द geographical north pole to the geographical south pole of earth is known as geographical axis. Clear? What do you mean by magnetic axis? So the line joining the magnetic south pole and magnetic north pole of earth is known as magnetic axis. What do you mean by magnetic north pole? So the magnetic north pole is simply the point on earth's surface where the magnetic field lines entering into the earth. Clear? What is magnetic north pole? So the magnetic north pole is simply the point on the surface of earth where the magnetic field lines of earth will originate from the earth's surface. Clear? So this is the basic definition of magnetic north pole, magnetic south pole, magnetic north pole, magnetic axis, geographical axis. Clear? You have to note it down. जब मैं बोल रहा था पीछे जाके वॉइस सुनो और उसे नोट कर लो, जो लोग बोर्ड में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए, लेट अस मूव ऑन। what do you mean by equator? So equator is a plane perpendicular to the axis. What is equator? Equator is a plane perpendicular to the axis. Geographical equator is the plane perpendicular to the geographical axis and cutting the maximum part of earth. Clear? And passing through the center of the earth, we can say. Okay? So a plane perpendicular to the geographical axis and passing through the center of the earth is known as geographical equator. Clear? And a plane perpendicular to the magnetic axis, a plane perpendicular to the magnetic axis and passing through the center of the earth is known as magnetic equator. Simply, this is the definition of magnetic equator and geographical equator. ठीक, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब दो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है जो आपको लिख के याद करनी पड़ेगी, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्लियर? पहले मैं समझा देता हूं उसे। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक टर्म आता है। क्या आता है? मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय मेरिडियन? मेरिडियन इज अ पॉइंट, मेरिडियन इज डिफाइंड एज अ प्लेन। व्हाट इज इट? इट इज अ प्लेन। क्लियर? फर्स्ट थिंग दैट these meridians are plane, a plane passing through the point on the surface of earth and through the axis. Clear? So this is a plane passing through the point on the surface of the earth and the axis is known as meridian. ठीक? जब so the magnetic meridian is what? एक पॉइंट आपने अर्थ की एक्सिस पे लिया, अर्थ की सरफेस पे ले लिया, ठीक है? उस पॉइंट को आपने मैग्नेटिक एक्सिस से ज्वाइन कर दिया। ठीक है? ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन होगा, आप समझ रहे हो क्यों प्लेन होगा? बिकॉज देयर इज अ एक्सिस, क्लियर, जैसे ये प्लेन पास कर रहा है, और एक पॉइंट जैसे ये प्लेन पास कर रहा है, तो जरूर से ये एक प्लेन होगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है? सो दिस प्लेन विच इज पासिंग थ्रू अप द पॉइंट ऑन अर्थ, द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन अर्थ एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। इट इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन। आपको समझ में भी आ गया होगा कि भाई मान लीजिए हम अर्थ में इस समय इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, और इस पॉइंट को अगर आप मैग्नेटिक एक्सिस से ज्वाइन कर देते हो, मैग्नेटिक एक्सिस वाले प्लेन से ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, तो ये जो प्लेन आएगा, दिस प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है? सो द डेफिनेशन इज वेरी मच क्लियर। अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस एंड द मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? अगेन, geographical meridian is what? A plane. Again, the plane passing through a point on the earth surface and the geographical axis is known as geographical meridian. ठीक है? So a plane passing through the point on earth and
geographical axis is known as geographical meridian. Okay, what do you mean by poles? So pole is what? Pole is the point on the surface of earth where the magnetic field is entering into the surface of earth or originating from the surface of earth. Clear? So this is the definition of pole. What is the definition of equators? ये सारी definition मैंने यहाँ पे आपको बताई है, इनको आपको नोट करना है, नोट डाउन करना है. क्लियर? और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख भी दी है. ठीक? सो फिर से एक बार समझते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिज्म में हमने क्या क्या चीज देखी. हमने मैग्नेटिक एक्सिस देखी जो कि इंक्लिनेशन पे है एट एन एंगल ऑफ 11 डिग्री फ्रॉम द ज्योग्राफिकल एक्सिस. फर्स्ट थिंग. क्लियर? मैग्नेटिक इक्वेटर देखा, ज्योग्राफिकल इक्वेटर देखा. ठीक है? पोल्स देखे, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 3 एलिमेंट्स होते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्लियर? आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज द मेन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए यही चीज जो मैं बताने वाला हूं. क्लियर? चलिए. So students, wait for a while. Before going to the elements of earth magnetic field, first we have to try to know the reason of this magnet. ऐसा लगता तो है कि अर्थ के अंदर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक बड़ा सा मैग्नेट छुपा हुआ है. क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट. क्लियर? और बिकॉज ऑफ कंपास, मैग्नेटिक कंपास की वजह से. ठीक है कि भाई अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है? क्या सच में ऐसा कोई बड़ा सा मैग्नेट अर्थ की सरफेस के अंदर रखा हुआ है, अर्थ के अंदर है कि नहीं? सो स्टूडेंट्स, एक थ्योरी है कि ऐसा कोई भी मैग्नेट इस अर्थ के अंदर नहीं है. अगर होता तो जब हम कहीं पे डिगिंग करते तो वो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो थ्योरी दी गई है, द थ्योरी विच डिफाइंस द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज सिंपली दैट कि अर्थ के अंदर जो है ये लावा है. ठीक है? क्या है? लावा, मैग्मा है. वी कैन से मेल्टेड फॉर्म ऑफ आयरन. ठीक है? मेल्टेड फॉर्म ऑफ आयरन ये अर्थ के अंदर बहुत हाई अमाउंट में है. क्लियर? और जब ये मेल्टेड फॉर्म ऑफ आयरन जो है ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है. ठीक है? तो इसमें कुछ चार्जेस भी हैं. क्लियर? ये मेल्टेड फॉर्म ऑफ आयरन में कुछ चार्जेस भी होंगे, मींस Fe+2 होगा, और भी मिनरल्स होंगे. क्लियर? जो चार्ज्ड होंगे. सो इन मिनरल्स के फ्लो की वजह से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, कहीं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में एक चार्जेस के फ्लो जनरेट होता है, एक करंट जनरेट होता है. क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, द इनहेरेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कि भाई अर्थ की सरफेस के अंदर कोई मैग्नेट नहीं पाया गया. ठीक है? डिगिंग करी लेकिन कोई मैग्नेट इस तरह से मिला नहीं. ठीक? जो ये बता सके कि भाई यहीं पे ये इस मैग्नेट की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, इसके बारे में एक थ्योरी दी गई है कि भाई अर्थ जो है उसके अंदर लावा है, मैग्मा है. ठीक है? जिसमें मेल्टेड फॉर्म ऑफ आयरन है. इस मेल्टेड फॉर्म ऑफ आयरन में कुछ चार्ज मिनरल्स भी हैं. आयरन भी हो सकता है. ठीक है? और मिनरल्स भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मिनरल्स भी हो सकते हैं, निकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मैग्नेटिक चार्ज मिनरल्स हैं इसमें. ठीक है? जो कि जब फ्लो करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर फ्लो देयर इज अ करंट, इनहेरेंट करंट इनसाइड द अर्थ. क्लियर? इस करंट की वजह से, इस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है, और इस मैग्नेटिक डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. ठीक है? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस इनहेरेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. क्लियर? सो एक साइंस होती है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं. दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल मैग्नेटिज्म. क्लियर? सो ये साइंस है, इसके बारे में अगर किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ भी सकता है जाके, लेकिन इतनी हमें जरूरत नहीं है, हमें जेईई मेंस निकालना है. ठीक है? सो द रिक्वायर्ड थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टेल यू. क्लियर? सो अब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज फॉर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. मैंने आपको यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म के कुछ चीजें बताई, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई. ठीक है? और उसके बाद मैंने आपको रीजन भी इसका बताया कि क्यों अर्थ का अपना मैग्नेटिज्म होता है. क्लियर? सो कुछ इंटरेस्ट आया होगा आप में. सो अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट अस मूव. ओके ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. बोर्ड में भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, जेईई में भी काफी बार पूछा गया है. क्लियर? और सिंपल, बहुत टाइम बचा सकता है कोई. इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत टाइम बच जाता है हमारा. क्लियर? जेईई की बात कर रहे हैं. ठीक? सो दोनों ही एक्सपेक्ट में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर?
So what is the element of earth magnetic field? This is simply the elements of earth magnetic field are, there are three elements of earth magnetic field. earth magnetic field के elements का क्या मतलब हुआ भाई? जो आपकी earth magnetic field है, अर्थ की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है उसके कितने एलिमेंट्स होंगे? तो ये आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, लेट इट टू बी बी, ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड कितने एलिमेंट्स होंगे? ठीक, सो हियर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज, फर्स्ट इज द मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ टिप. दिस इज डिनोटेड बाय थीटा सिंपली. क्लियर? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ dip, it is denoted by theta simply. Clear? Now theta, or we can say by delta also, theta or delta. Clear? I hope this thing is very much clear. It is denoted by delta. Okay students, now so wait for a while. So here it is the first element of earth magnetic field. This is magnetic inclination or angle of dip. Clear? Now this is our second element of earth magnetic field. This is horizontal component of earth's magnetic field. Horizontal नाम से ही clear है, horizontal component of earth magnetic field denoted by H. Clear? Now the last is a magnetic declination. So these three are the elements of earth magnetic field. Now we will study all these three वन बाय वन. ठीक, पहले समझ लीजिए, इन तीनों को एक साथ पहले समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, ये आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है. इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, व्हाट इज मीन बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस द कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज सिंपली मींस द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द अर्थ. क्लियर? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा. तो जो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी, समझिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है, दिस एंगल सिंपली नोन एज एंगल ऑफ मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप. व्हाट इज इट? इट इज द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर हम इस तरह से खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए इस डायरेक्शन में. क्लियर? और हॉरिजॉन्टल ऑफ द अर्थ तो हॉरिजॉन्टल ही होगा. क्लियर? So the angle between the magnetic field of earth and the horizontal surface of earth is known as, this angle is known as the magnetic inclination or angle of dip. Simply. Clear? Again, the angle between magnetic field and horizontal surface of the earth is known as magnetic inclination, or we can say the angle made by the magnetic field with the horizontal surface of the earth is known as magnetic inclination or angle of dip. Second definition, this is horizontal component of earth magnetic field. नाम से clear है. This is the magnetic field of earth, and its horizontal component means the component which is parallel to the surface of earth is known as horizontal component of magnetic field of earth's magnetic field. Clear? Means this is your magnetic field and this is your angle of inclination. So B is the magnetic field. So B cos theta will become the horizontal component of earth magnetic field simply. Clear? Now what do you mean by magnetic declination? This is simply, magnetic declination is the angle between magnetic meridian and geographical meridian. Clear? So students, now we are going to see the relations in them also. Clear? So चलिए एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझते हैं. इनकी डेफिनेशन अभी मैंने आपको नहीं समझाई, बस मीनिंग समझाया है. क्लियर? बाय एंगल ऑफ डिप क्या होगा? एंगल ऑफ डिप इज सिंपली द एंगल दैट द मैग्नेटिक फील्ड, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल मेक फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ऑफ द अर्थ सरफेस. Clear? And this is the horizontal component of that magnetic field of earth. Clear? And this is the angle of declination, which is the angle between the magnetic meridian and geographical meridian. ठीक है? तो चलिए अब प्रोसीड करते हैं. डेफिनेशंस देखते हैं इनकी. So this is the, what is magnetic inclination or angle of dip? This is the angle made by the magnetic field of earth, or we can say angle made by the earth's magnetic field with horizontal is simply
the magnetic inclination or angle of dip. We will use the term angle of dip. Clear? Now अब हम यहाँ से angle of dip ही use करेंगे, ये बहुत important term है. Angle of inclination की अगर बात हो तो भी समझ जाइएगा angle of dip की बात हो रही है, ठीक है? So this is the angle made by Earth magnetic field with horizontal. Clear? Suppose ये Earth की surface है, clear? और यहाँ पे जो magnetic field है Earth की, this will be like this. Suppose this is the magnetic field of Earth. ठीक है? So this angle will known as delta. This is the angle of dip. This is our angle of dip. Clear? Now horizontal component of Earth magnetic field. This will be very much simple. This is what? This is the horizontal. नाम से clear है. कुछ definition नहीं देने की जरूरत है. The horizontal component of Earth magnetic field. The horizontal component of Earth's magnetic field. I hope this thing is very much clear. तो आप देख रहे हो इसका जो horizontal component हो जाएगा, भाई ये magnetic field है अर्थ की और ये horizontal है. So this will be our horizontal component. अगर हम ये triangle देख रहे हैं, so this will be our horizontal component denoted by H. This will be equals to B cos delta. Clear? अगर हम इसी तरह से एक vertical component भी बता दें, so this is the vertical component of Earth magnetic field. This is our vertical component of Earth magnetic field. Clear? This is it. Sorry. This is the vertical component of Earth magnetic field, and the value of this will be simply B sin theta. Okay? B sin theta. और यहाँ से एक ये इसको V बोल देते हैं. This V is equals to B sin theta. This is the vertical component. This is the horizontal component. Okay? So now students, now from here we can see that tan delta, this delta is the angle of dip, will be equals to simply V by H. एक ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है? अगर हमको H दिया जाए और V दिया जाए तो हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. दिस इज सिंपली mod B will be equals to under root H square plus V square simply. So these are very important formulae. क्लियर? आपको क्या करना है, आपको सिंपली वेक्टर है ये वेक्टर का क्वेश्चन आ गया. अगर इस तरह से कुछ भी आपसे पूछ दिया गया, H दे दिया गया, V दे दिया गया, आपसे B पूछ दिया गया, तो ये सिंपली वेक्टर का एक क्वेश्चन है. भाई ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, दोनों के बीच में जो एंगल है, कंप्लीट एंगल, दिस विल बी 90 डिग्री एज वी ऑल नो. ठीक है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos डेल्टा आ जाएगा, वेयर दिस डेल्टा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ठीक है? और वी कैन से एंगल ऑफ डेप्थ. दिस V इज vertical component, this H is horizontal component, H is equals to B cos delta, V is equal to B sin delta. दोनों का रेशियो जो है वो tan अल्फा के बराबर आ जाएगा फ्रॉम दिस ट्रायंगल. क्लियर? इस ट्रायंगल को अगर आप देख सकते हो, दिस इज A, B and C. इस ट्रायंगल से आप देखोगे तो tan delta equal to V by H मिल जाएगा. दिस इज सिंपली mod V and mod H. ओके? और यहाँ से आप mod B is equals to mod H का होल स्क्वायर प्लस mod V का होल स्क्वायर. सो दिस इज योर simple and basic formulae based on the two components of Earth magnetic field. This is first is magnetic inclination or angle of dip, and the second is horizontal component of Earth magnetic field. Now we are going to see this last element of the Earth magnetic field. Clear? So last element क्या है, इसको समझते हैं. The magnetic declination. What do you mean by declination? It means the magnetic declination means the angle between magnetic meridian and geographical meridian. Clear? So it is the angle between magnetic meridian and geographical meridian. Okay student? So I hope the thing is very much clear to you. The angle between magnetic meridian and geographical meridian. Magnetic meridian क्या होता है? So magnetic meridian simply is a plane. This is a plane passing through a point on the surface of the earth and magnetic axis. Clear? और उसी point से आप join कर दो geographical axis को, तो ये जो plane आएगा ये geographical meridian हो जाएगा. Clear? हमने एक point select किया अर्थ की surface पे, उस point से हमने पहले मैग्नेटिक एक्सिस को ज्वाइन किया. सो दिस इज अवर मैग्नेटिक मेरिडियन
और उसी पॉइंट से हमने ज्योग्राफिकल एक्सिस को ज्वाइन किया, सो दिस इज अवर ज्योग्राफिकल मेरिडियन. So the angle between this magnetic meridian and geographical meridian is simply the angle of declination. अगर इसको हम फिगर से देखें, तो ये आपने अर्थ पे कोई पॉइंट सिलेक्ट किया, ठीक. अब आपने इस पॉइंट को मैग्नेटिक एक्सिस से ज्वाइन किया, सो दिस इज आवर प्लेन, दिस इज आवर प्लेन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन. और फिर आपने इस पॉइंट को आपने ज्योग्राफिकल एक्सिस से ज्वाइन किया, सो दिस इज आवर, इस पॉइंट को आपने ज्योग्राफिकल एक्सिस से इस तरह से ज्वाइन किया. सपोज दिस इज, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने ज्योग्राफिकल एक्सिस से ज्वाइन किया. सो दिस इज अवर ज्योग्राफिकल एक्सिस, क्लियर, एंड दिस इज अवर मैग्नेटिक एक्सिस. So the angle between the geographical axis and the magnetic axis at any point will be equals to angle of declination, or we can say simply angle of declination only angle of declination. So this is angle of declination, it is denoted by theta. This angle is denoted by theta, this is denoted by delta. Clear? I hope this thing is very much clear. तो ये आपका सिंपल सा इसकी डेफिनेशन हो गई. मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन आपको 3D में समझना होगा. एक पॉइंट आपने अर्थ की सरफेस पे सिलेक्ट किया, जब उस पॉइंट को आपने मैग्नेटिक एक्सिस से ज्वाइन किया, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन, क्लियर. और जब उसी पॉइंट को आपने ज्योग्राफिकल एक्सिस से ज्वाइन किया, सो दिस इज योर मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन प्लेन, क्लियर. और इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा उस पॉइंट पे जो बन रहा होगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है. सो these three are the elements of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. कभी भी आपसे पूछा जाए कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो वो सिर्फ 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. बाकी मैंने जो पीछे डेफिनेशन बताई थी वो आप कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात होगी तो सिर्फ इनकी बात होगी, क्लियर. दीज 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर. फर्स्ट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्ड इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है. सो यहां से आपका अर्थ मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट खत्म होने को है. एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद हम न्यूट्रल पॉइंट्स को समझेंगे, व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रल पॉइंट्स, ठीक. देन वी विल मूव टुवर्ड अ वेरी बेसिक कंसेप्ट, अ वेरी बेसिक एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ठीक है. एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो आज हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस टॉक अबाउट दीज 2 क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन द अर्थ मैग्नेटिज्म. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस is 0.3 times the horizontal component. समझ पा रहे हो, क्लियर. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं. देखिए कभी भी अगर आपको एग्जाम में ये अर्थ मैग्नेटिज्म पे क्वेश्चन मिल जाए तो समझ लो काम हो गया, काम बहुत सिंपल होना है, ठीक है. बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन होते हैं. एक्चुअली एक मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो सिंपली वेक्टर के हैं, क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो √3 times the horizontal component of earth magnetic field means V is equals to √3 times H, क्लियर. What is the value of angle of dip at this place? तो सिंपली आपको फिगर बनाना है. ये आपकी कंप्लीट मैग्नेटिक, ये आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ डिप, दिस इज एंगल ऑफ डिप. तो आप जानते हो फॉर्मूला कि भाई सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका जो tan डेल्टा हो जाएगा स्टूडेंट्स. दिस इज योर tan डेल्टा. दिस विल बी सिंपली व्हाट, दिस विल बी सिंपली फ्रॉम दिस फिगर, दिस इज V, दिस इज H, क्लियर. So this is V, this is H. So this will become V by H. Clear? So V by H √3 H आपका V दिया हुआ है और H तो H है ही, H cancel हो जाएगा. This tan delta will be equals to √3. From here we will get this delta will be equals to 60 degree. So this is your answer. This is your answer. बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है. वेक्टर के क्वेश्चन होते हैं एक तरह से, क्लियर. तो जब भी कभी आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन मिल जाए तो समझ लो बहुत इजी हैं ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है. सेकंड वाला देखते हैं. सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर एट अ प्लेस R, किसी प्लेस पे ये दिए हैं 0.2 G. व्हाट डू यू मीन बाय G? G इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज गॉस. 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये हम जानते हैं, ठीक है. लेकिन हमसे गॉस में पूछा गया, गॉस में दिया गया तो गॉस में ही रहने देते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H एंड दिस इज vertical component, that is V, clear. Now calculate the angle of dip. Again angle of dip हमें calculate करना है, and resultant intensity of earth magnetic field. Resultant intensity of earth magnetic field मतलब B हमें calculate करना है. So what we have to calculate is delta and B, clear. So let us try. खुद से solve कीजिए इस क्वेश्चन को, आंसर निकालिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा. बहुत सिंपल और बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है. So
from this figure we can conclude that B is equals to mod B will be equals to under root mod H का whole square plus mod V का whole square simply. ठीक है, mod is magnitude, so this is under root 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.38 का स्क्वायर, दिस इज 0.38 का स्क्वायर, गॉस में अपना रिजल्ट आएगा. क्लियर, सिंपल है. एंड डेल्टा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, व्हाट इज tan इनवर्स v बाय h का मॉड. क्लियर, सो दिस इज योर डेल्टा. v बाय h निकाल दो, दिस इज 0.38 डिवाइड बाय 0.22, 0.38 डिवाइड बाय 0.22 का tan इनवर्स लेना है हमको. क्लियर, so this is our delta, this will be our answer. So simple and basic numericals थे. Now we will talk about the neutral points. What is the definition of neutral points? Okay, so now let us talk about the neutral points. ठीक है, so this neutral point is the point associated with the bar magnet. ठीक है, so bar magnet की magnetic field आप अच्छे से जानते हो dear students कि ये आपका एक रीजन में bar magnet अगर इस तरह से रखा हुआ है. Clear? This is your north pole, this is your south pole. ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें इसकी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो दिस इज द एक्सियल पोजीशन एंड दिस इज अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल. सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? दिस S2N इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. क्लियर, सो दिस इज वी हैव टू पुट इन आवर माइंड्स. क्लियर, सो द डायरेक्शन ऑफ magnetic field in this case will be in this direction. Clear? Or when we find the direction of magnetic field here, then this will also be the axial position. This is the axial position, this is the axial position. So the magnetic field will again be in the direction of magnetic dipole moment. So the magnetic field will be in the direction of magnetic dipole moment. Clear? But what will happen if we will talk about the equatorial position? What will happen if we talk about the equatorial position? Then the magnetic field will be opposite to the direction of magnetic dipole moment. So the magnetic field in equatorial position will be just like this. I hope this thing is very clear, very much clear. Okay, so this is the direction of magnetic, this is the direction of magnetic field. Clear? And if we will talk about the magnetic field lines, then it will be originate from north pole and then terminate to south pole outside the magnet, and then inside the magnet from south pole to north pole. Clear? This will be the magnetic field line. So आप जानते हो magnetic field, आप बार मैग्नेट की अच्छी तरह से जानते हो. अब सोचो ये बार मैग्नेट अगर अर्थ में रखा हो, ठीक है, ये बार मैग्नेट अगर अर्थ में रखा हो तो अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. सपोज कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से इस तरह से बाहर की तरफ आ रही है. लेट अस सपोज दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? और सपोज दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ठीक, इस तरह से डॉट है, एक एंगल पे निकल रही है. सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस एंगल पे निकल रही है बाहर की तरफ. ठीक है, यहां पे. तो अब आप देखोगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है. तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा. हर जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो रेड पेन में दिखा रहा हूं इस तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगी. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह से होगा हर जगह पे. हर जगह पे सेम होगा हर जगह, बिकॉज दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल नॉट चेंज वेरी मच विद द पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस. ज्यादा चेंज नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा तो चेंज करेगा ही. ठीक है, जैसे जैसे हम पोल के पास जाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और कम हो जाएगा. ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा जैसे जैसे हम पोल के पास जाएंगे, क्योंकि पोल पे आपने देखा था जब हम पोल की बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट था. ठीक है, सो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. तो कोई ना कोई पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जस्ट कैंसल आउट कर रहे होंगे. सो these point on the surface of earth, which is the points of around a bar magnet, at which the net magnetic field, because the net magnetic field will be zero. The net magnetic field, because of this, the magnetic field of the bar magnet and the horizontal component of earth magnetic field will be zero. These points are known as neutral points of the bar magnet. Clear? मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या होगी न्यूट्रल पॉइंट्स की? सिंपली a neutral point in the magnetic field of a bar magnet is that point where the field due to magnet
is completely neutralized means cancelled by the horizontal component of earth magnetic field. Clear? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो जस्ट कैंसिल आउट कर देगी, मींस दीज टू फील्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट. क्लियर? और वर्टिकल कंपोनेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा. हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है न्यूट्रल पॉइंट्स पे वो हो सकता है, उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, दैट विल बी कैंसल्ड बाय द magnetic field of the bar magnet. ठीक है? So at neutral points what will happen, the B is the magnetic field of bar magnet. This is for bar magnet की magnetic field. Clear? So this will be cancelled by the horizontal component of earth magnetic field. This will be cancelled by horizontal component of earth magnetic field of B, of earth magnetic field, of earth's magnetic field. Okay students, so these two fields are equal and opposites. ठीक है? और ये दोनों fields एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी. So and these two cancels each other. ठीक है? So वो जो points होंगे around the bar magnet, जैसे कि आपने इसमें देखा, ये जो points आएंगे भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर मैं बताऊं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक पेन से दिखाते हैं. सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ठीक है? ये लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं. ठीक? और आप समझ रहे हो, आपसे अगर मैं पूछूं कि कहां पे ऐसे पॉइंट्स लाई करेंगे जहां पे नेट फील्ड, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, वो पॉइंट्स कौन से होंगे, ये पूछा गया. ठीक है? सो आप समझ रहे हो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी लेफ्ट में है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी लेफ्ट में है. सो दिस विल नॉट बी जीरो, दिस विल अगेन नॉट बी जीरो, बट हियर इज द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ is in left direction. Clear? And the magnetic field of this bar magnet is in right direction. Clear? So here is one point, one neutral point, and here will be second neutral point. So these two are the neutral points. इस तरह से आप neutral points बता भी सकते हो कि भाई बार मैग्नेट के इस केस में neutral points कहां पे होंगे, और यही बार मैग्नेट अगर vertical रख दिया जाए, vertical to the horizontal component of earth magnetic field, तब उस केस में इसके जो neutral points होंगे वो कहां होंगे, आप अच्छे से बता सकते हो. ठीक है? आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है, देन यू विल फाइंड वेयर विल बी द न्यूट्रल पॉइंट्स विल लाई. क्लियर? सो नोट डाउन ऑल द डेफिनेशंस एंड ऑल द कंक्लूजंस. क्लियर? सो दिस इज द थिंग्स अबाउट द न्यूट्रल पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर. क्लियर? सो व्हाट इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर? ये एक सिंपल सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, वी विल कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स, क्लियर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन. क्लियर? भाई मान लीजिए किसी रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें मेजर करना है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कुछ भी अगर हमें मेजर करना है, सो मान लीजिए भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेजर करना है, तो उसको मेजर करने के लिए कोई डिवाइस होनी चाहिए ना, उसको कंपेयर करने के लिए, ये कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है. ठीक है? सो एक डिवाइस को हमने इन्वेंट किया, दैट इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, जो उस मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर सकती है. दूसरी चीज ये क्या कंपेयर कर सकती है, भाई दो मैग्नेट्स हैं हमारे पास, दो बार मैग्नेट्स हैं, अब इनका मैग्नेटिक मोमेंट्स को हमें, मतलब कैपिटल एम को हमें मेजर करना है. ठीक है? इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स को हमें मेजर करना है. सो ये काम भी एक डिवाइस करेगी. एक डिवाइस है हमारे पास, जब हम उसको एक ही जगह पे रख रहे हैं, लेकिन उसका अंदर का मैग्नेट हम चेंज कर देंगे, उसमें एक मैग्नेट रखना है हमें. ठीक है? उस डिवाइस में हमें एक मैग्नेट रखना है जिसकी मदद से वो डिवाइस काम करेगी. समझ पा रहे हो? तो अगर हम पहला वाला मैग्नेट रखेंगे तब पहले वाले का मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से रिजल्ट आएंगे, जब दूसरा वाला रखेंगे तो दूसरे वाले के हिसाब से रिजल्ट आएंगे. तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट के, बार मैग्नेट्स के कंपेयर कर सकते हैं. दूसरी चीज क्या कंपेयर कर सकते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या फिर कोई भी और मैग्नेटिक फील्ड हो जो उस रीजन में, उसको कंपेयर कर सकते हैं. जब डिवाइस को हम प्लेस 1 पे रखेंगे वहां का रिजल्ट आएगा, जब प्लेस 2 पे रखेंगे तो वहां का रिजल्ट आएगा. अब रिजल्ट में आता क्या है इसको देखते हैं. ठीक है? तो पहले फिजिकली समझते हैं व्हाट इज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, देन वी विल टॉक अबाउट
हाउ इट विल वर्क, क्लियर, हाउ इट वर्क्स। सो इसका कंसेप्ट समझिएगा। एक सस्पेंडेड बार मैग्नेट है आपके पास, एक बार मैग्नेट है, आपने इसको सस्पेंड करके रख दिया, सिंपली इस तरह से हमने इसे सस्पेंड करके रख दिया, क्लियर। और रीजन में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मान लेते हैं कि इस रीजन में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस शो द मैग्नेटिक फील्ड बाय रेड पेन, क्लियर। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बी एच। सपोज देयर इज ओनली द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, क्लियर। सो दिस इज simply the horizontal component of earth magnetic field, and here is the magnetometer. So here is a magnet. So this device is simply magnetometer. This suspended bar magnet will act as magnetometer. Clear? यही suspended bar जो है ये magnetometer की तरह act करेगा। अब समझिएगा इसमें हो क्या रहा है। अब जैसे ही इस magnet को suppose there is north pole and there is south pole. सपोज देयर इज नॉर्थ पोल एंड देयर इज साउथ पोल, तो अभी आप ये बताइए मुझे कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इसकी वजह से ये जो बार मैग्नेट है ये इक्विलिब्रियम में तो है, जैसा कि आपको दिख रहा है। दिस बार मैग्नेट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये बताइए ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? तो बिल्कुल सही बात है, ये इक्विलिब्रियम जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल अगर आप थोड़े से इसे डिस्प्लेस करोगे, नॉर्थ पोल राइट जाना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, और साउथ पोल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, क्लियर। सो इस वजह से अगर आपने इसको इस तरह से टिल्ट भी कर दिया, नॉर्थ पोल राइट जाएगा, साउथ पोल को लेफ्ट आना है, सो अगेन दिस विल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, क्लियर। सो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हमें इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसका टाइम पीरियड हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप जानते हो एसएचएम में आपने पढ़ा होगा, पहले हम, सो दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन, दिस इज द वाइब्रेशनल मोशन। सो एसएचएम में आपने पढ़ा होगा टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, पहले हम फोर्स निकालते हैं, एंड दिस फोर्स विल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्लियर। सो वहां से ये F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाता है, क्लियर। वहां से फिर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, दिस एक्सेलरेशन विल बी k बाय m x। अगर हम फोर्स का डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन से हमें ये बता रहा है दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स, अगर हम नेगेटिव साइन को हटाना चाहते हैं तो हम हटा भी सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज अवर एक्सेलरेशन, फ्रॉम हियर वी विल कंपेयर इट फ्रॉम ओमेगा स्क्वायर x, clear. From here we will compare it from minus omega square x, and then we will find our omega, then t is equals to 2 pi by omega. Okay students? So students, now I hope that you can try it by yourself, you can do it by yourself. This is very simple part, clear. एक बार आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, clear. एक बार खुद से आप इसको ट्राई कीजिए, then we will meet in the next lecture and talk about this, clear. Hints क्या है कि आपको सबसे पहले F निकालते थे हम यहाँ पे SHM में, this is linear vibrational motion और we can say linear harmonic motion, clear, simple harmonic motion, ठीक। simple means का क्या मतलब है, जो फोर्स होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस केस में फोर्स नहीं होगा, टॉर्क होगा, तो टॉर्क जो होगा इस केस में वो आपके डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंडीशन ये है कि आप मीन पोजीशन से बहुत स्मॉल डिफ्लेक्ट करोगे, कंडीशन ये है कि मीन पोजीशन से हम यहाँ पे बहुत स्मॉल डिफ्लेक्ट करेंगे, तब ऐसा होगा, क्लियर। हम टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क इज m क्रॉस b, दिस इज m b sin थीटा, लेकिन छोटे से डिफ्लेक्शन के लिए ये sin थीटा थीटा से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। वहां से यहाँ पे हम फोर्स निकालते थे, वहां हम टॉर्क निकालेंगे, यहाँ हम एक्सेलरेशन निकालते थे लीनियर, वहां एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर वहां से हम सीधे सिंपली इस तरह कंसेप्ट लगा के अपना टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये टाइम पीरियड ही आपको बताएगा, ये टाइम पीरियड आपको बताएगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हाई है कि लो है, ठीक है। अगर हम मैग्नेट को कांस्टेंट रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करा सकते हैं, और अगर प्लेस को कांस्टेंट रखेंगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं तो मैग्नेट को कंपेयर करा सकते हैं, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, क्लियर। टिल देन you have to do it by yourself, you have to try it by yourself, and then we will see this part of the section in the next section, clear. So okay, just try it, and thank you all.